آپ نے حکمرانوں کے کرپشن کی انگنت کہانیاں سنی ہوں گی، کچھ غضب کرپشن کی تو کچھ عجب کرپشن کی، لیکن آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہا ہوں جو ضرب کرپشن کی ہے، ملٹی پلائی کرپشن۔ ضرب دے کر ارب کرپشن کی گئی ہے، اربوں کی کرپشن، اور وہ بھی اس پیسے میں جو مجھے اور آپ کو واپس کرنا ہوگا۔ جی ہاں، یہ اربوں کی کرپشن کی گئی ہے ورلڈ بینک سے قرضہ لے کر، یعنی آپ اسے قرض کرپشن بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن میں اسے نام دوں گا 300 فری یونٹ بلاول کرپشن کا۔ کرپشن بلاول نے نہیں کی، لیکن نام بیچارے بلاول کا ہی بدنام ہو رہا ہے، کیونکہ نعرہ بلاول نے دیا تھا، ایک ایسا انتخابی نعرہ جو بلاول نے الیکشن سے پہلے لگایا تھا، اور سندھ حکومت نے اس نعرے کو بھی کمائی کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ یہ کہانی کیا ہے؟ ورلڈ بینک کو کیسے چونا لگایا گیا؟ اس کرپشن کے پیچھے ہے کون اور اس کے فرنٹ مین کون ہے؟ یہ سب میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے اگر آپ کو میرا کام پسند ہے اور آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کیجئے، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجئے، اور کامنٹ سیکشن میں جا کر کامنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ پیپلز پارٹی جو نہ کرے وہ کم ہے۔ حالیہ بارشوں میں سیلابی پانی کہیں شاہراہ بھٹو کی صورت میں بھٹو کا نام ہی ساتھ بہا کر لے گیا، تو کہیں ہب کینال کی صورت میں کراچی والوں کو دکھائے جانے والے اضافی پانی کے خواب، اور مجموعی طور پر ان دونوں منصوبوں میں کئی ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے۔ لیکن جناب، یہ بھی کوئی کرپشن ہے؟ کرپشن تو وہ ہے جس کی کہانی میں آج آپ کو سناؤں گا، ایک ایسی کہانی جو آپ کی آنکھیں کھول دے گی۔ میں آج آپ کے سامنے ایک ایسا اسکینڈل رکھنے جا رہا ہوں جو پاکستان پیپلز پارٹی کا اصل چہرہ بے نقاب کرے گا۔ پیپلز پارٹی صرف اس صوبے یا شہر کے عوام کو ہی نہیں لوٹتی، وہ عالمی اداروں کو بھی نہیں بخشتی۔ لیکن اس سے پہلے ذرا یہ ایک انتخابی نعرہ سن لیجیے۔ یہ بلاول بھٹو کا وعدہ ہے کہ 300 یونٹ بجلی مفت سولر کے تھرو ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ بلاول نے یہ بات الیکشن سے پہلے 18 جنوری 2024 میں نوشہر و فیروز میں ایک عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہی تھی، لیکن بلاول وزیر اعظم نہیں بن سکے، اور الیکشن کے بعد 8 جولائی 2024 کو پشاور میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اس وعدے سے متعلق کیا کہا، یہ بھی سن لیجیے۔ مجھے تو ایکچولی 300 یونٹ کا وعدہ تھا، اور وہ وعدہ یہ تھا کہ مجھے وزیر اعظم بنا دے اور پھر میں یہ کر دوں گا۔ وہ ایسے ویسے یہ شاید پہلا الیکشن نہیں ہوگا، آپ دیکھتے ہوں گے ملک بھر میں، دنیا بھر میں الیکشنز ہوتے ہیں اور منشور ہوتے ہیں۔ جب آپ حکومت میں آتے ہیں تو پھر آپ کو موقع ملتا ہے کہ آپ ان منشوروں پہ عمل کریں۔ لیکن پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے بلاول کے اس انتخابی منشور میں بھی اپنے لیے کرپشن کی راہ ڈھونڈ ہی لی، اور 300 یونٹ فری بجلی کا منصوبہ سندھ میں شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن اپنے پیسوں سے نہیں، ورلڈ بینک کے پیسوں سے۔ ورلڈ بینک سے اگست 2024 میں طے پایا کہ 3 بلب، 1 پنکھا اور انہیں چلانے کے لیے 80 واٹ کا ایک سولر پینل بیٹری کنٹرولر کے ساتھ سندھ کے عوام میں مفت تقسیم کیے جائیں گے، تاکہ عوام کو فری بجلی مل سکے۔ آئیڈیا برا نہیں تھا، برا وہ دماغ تھا جس نے اس عوامی فلاح کے منصوبے میں اپنی فلاح یعنی اپنا فائدہ ڈھونڈا۔ سندھ حکومت نے ورلڈ بینک سے ڈیل کے بعد ایک پری کوالیفیکیشن کا اشتہار دیا، اور یہاں سے ہی اس عوامی منصوبے میں خواص کی کرپشن کا آغاز ہو گیا۔ 3 سپلائر شارٹ لسٹ کیے گئے، اور یہ تینوں کمپنیز بظاہر انگلینڈ، امریکہ اور چائنا کی تھیں، لیکن در حقیقت یہ تینوں ایک ہی شخص کی تھیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ انہیں مینیج ایک ہی شخص کر رہا تھا، وقاص علی۔ وقاص علی کون ہے، کس کا فرنٹ مین ہے، اور جس کا فرنٹ مین ہے وہ کس کا فرنٹ مین ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ پہلے ذرا اس غضب کرپشن کی عجب کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تینوں کمپنیز میں سے ایک کمپنی کو سندھ حکومت کی جانب سے فائنل کر دیا گیا۔ یہ چائنا کی کمپنی تھی، لیمی۔ ہر بار لیمی کی کوٹیشن سب سے کم ہوتی تھی، اور ایسا کیوں ہوتا ہے یہ وہ لوگ بخوبی سمجھ سکتے ہیں جو سرکاری ٹینڈرز کے طریقہ کار سے واقف ہیں۔ ان شارٹ یہ کہ یہ کام لیمی سے ہی کرانا تھا، اور تینوں کمپنیز بظاہر الگ الگ ہوتے ہوئے بھی چونکہ مینیج ایک ہی ہاتھ سے ہو رہی تھیں، اس لیے لیمی کو پہلے ہی پتہ ہوتا تھا کہ اسے کیا کوٹیشن دینا ہے، اور وہ وہی کوٹیشن دیتی تھی جو دوسری کمپنی سے کم ہوتی تھی، اور اس طرح لیمی کو قانونی طور پر
सोलर होम सोल्यूशन किट फराहम करने का ठेका मिल ही गया। यह दूसरे लफ्ज़ों में यूं कह लीजिए, होम सोल्यूशन से होम ऑफ करप्शन का गेट खुल गया। और उस गेट की चाबी किन हाथों में थी, यहाँ मुख्तसरन उसका जिक्र भी कर देता हूँ। बज़ाहिर ये टेंडर सिंध हुकूमत के एनर्जी डिपार्टमेंट की जानिब से दिया गया था, जहाँ एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर का ओहदा और उस पर विराजमान एक शख्स भी है, महफूज काजी। लेकिन हकीकत में महफूज काजी की कोई हैसियत नहीं है। ये सारा खेल एक फ्रंटमैन का है, जाफ़र ख्वाजा, जो फ्रंटमैन है मुल्क की अहम तरीन सियासी शख्सियत के इंतहाई करीब समझे जाने वाली एक कारोबारी शख्सियत का। और जाफ़र ख्वाजा का फ्रंटमैन है वकास अली। हाल यह है जनाब कि क्लिफ्टन में वाक़ एनर्जी डिपार्टमेंट की पार्किंग में जगह कम होने की वजह से प्रोजेक्ट डायरेक्टर की गाड़ी दफ्तर से बाहर खड़ी होती है और जाफ़र ख्वाजा की दफ्तर की पार्किंग में। बज़ाहिर ये निहायत मामूली बात लगती है, लेकिन असल में इससे पावर दिखती है, जाफ़र ख्वाजा की पावर। और जाफ़र ख्वाजा की पावर इतनी है कि एनर्जी डिपार्टमेंट का कोई भी टेंडर उसकी मर्ज़ी के बगैर नहीं खुलता। और ये जाफ़र ख्वाजा कोई और नहीं, साबिक निगरान वज़ीर है। खैर, गज़ब करप्शन की अजब कहानी पर वापस आते हैं। तो जनाब, बड़ों के दरमियान तय पाया कि चीनी कंपनी लेमी $208 में एक सोलर होम सोल्यूशन किट फराहम करेगी और मजमूई तौर पर 2 लाख किट्स इंपोर्ट की जाएंगी। अभी कैलकुलेटर खोलकर हिसाब किताब करने ना बैठ जाइएगा कि इतने का $1, इतनी किट्स, कितने का करप्शन हुआ। ये सब मैं खुद बताऊंगा। सिंध हुकूमत के एनर्जी डिपार्टमेंट ने जल्दी कागजात तैयार किए और वर्ल्ड बैंक को मंजूरी के लिए भेज दिया। और वर्ल्ड बैंक तो जैसे कर्जा देने पर तुला बैठा था, उसने फौरी तौर पर मंजूरी भी दे दी। आखिर पाकिस्तानी कौम को मज़ीद मकरूज़ करने का कीमती मौका जो मिल रहा था, और यहाँ से करप्शन का नया धंधा शुरू हो गया। इस किट में आना क्या क्या था ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, यहाँ एक दफ़ा फिर वजाहत से बता देता हूँ। सिर्फ 3 बल्ब, 1 पंखा, उन्हें चलाने के लिए 80 वाट का एक सोलर पैनल और एक बैटरी कंट्रोलर। 3 बल्ब, सोलर पैनल और बैटरी, ये तीनों चीज़ें एक पैकेज की तरह थीं, यानी एक साथ। और इस पैकेज की मालियत सिंध हुकूमत ने तय की $112.44। उस पर टैक्सेस और ड्यूटी शो की गई $39.55। यानी ये 3 चीज़ें वर्ल्ड बैंक को $191.79 की पड़ी। 2 लाख की कितने की? $3 करोड़ की। और $3 करोड़ कितने हुए जनाब पाकिस्तानी? 8 अरब 45 करोड़ से ज़ायद। लेकिन जनाब, मेरे पास मौजूद कागजात तो कुछ और ही बताते हैं। आप स्क्रीन पर एक बिल ऑफ एंट्री देख रहे हैं, और इस बिल ऑफ एंट्री के मुताबिक लेमी ने ये सोलर किट सिर्फ $23.40 में इंपोर्ट की है। यानी जिस चीज़ की ख़रीदारी वर्ल्ड बैंक को $112 में दिखाई गई, वो तो सिर्फ $23 में आनी थी। अब कैलकुलेटर उठाएं। 112 - 23 = 89। यानी एक किट पर वर्ल्ड बैंक को और इनडायरेक्टली सिंध के अवाम को चूना लगा $89 का। और 2 लाख किट पर यह रकम बन गई $1,78,00,000 मल्टीप्लाई बाय 278.45, यानी $1 की वो कीमत जो सरकारी कागजात में दिखाई गई है। उफ, 4 अरब 95 करोड़ रुपए से ज़ायद बराह रास्त इस माफिया की जेब में गए। बात यहाँ तक रहती तो शायद ठीक था कि सिंध में इतनी करप्शन तो अब एक आम सी बात है। लेकिन जनाब, बिलावल करप्शन की इस कहानी में असल करप्शन इसके बाद शुरू हुई है। सोलर होम सोल्यूशन किट में 2 चीज़ें और भी थीं, एक पंखा और दूसरा माउंटिंग फ्रेम। करप्शन के अंदाताओं ने असल गेम इसमें किया है, जिसके सारे सबूत मेरे पास हैं। वर्ल्ड बैंक को दिखाया गया कि चीनी कंपनी लेमी एक पंखा $23.52 में इंपोर्ट करेगी, जिस पर $8.23 ड्यूटीज़ और टैक्सेस अदा करने के बाद ये पंखा $31.75 का पड़ेगा। यानी 2 लाख पंखे पड़ेंगे $63,50,000 के, यानी 1 अरब 77 करोड़ रुपए के। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि ये पंखे इंपोर्ट ही नहीं किए गए?
और उनकी इंपोर्ट से लेकर कस्टम और एक्साइज ड्यूटी समेत तमाम टैक्सेस के जाली कागजात तैयार किए गए हैं और एक एक कागज़ मेरे पास है। आइए ज़रा इन कागजात से ये ड्रामा समझा देता हूँ। आप स्क्रीन पर जो डॉक्यूमेंट देख रहे हैं ये एक जाली बिल ऑफ एंट्री है। कस्टम का वो डॉक्यूमेंट जिस पर किसी भी इंपोर्ट से मुतालिक तमाम मालूमात दर्ज होती हैं। इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक लेमी ने चाइना से पंखे इंपोर्ट किए हैं, लेकिन अजब करप्शन ये है कि कस्टम के रिकॉर्ड में इस बिल ऑफ एंट्री पर बियॉन्ड नामी कंपनी ने साउथ अफ्रीका से अपने किसी और प्रोजेक्ट के लिए लिथियम बैटरीज इंपोर्ट की हैं। लेमी ने पंखे नहीं किए। और जानते हैं ये बियॉन्ड एनर्जी का पार्टनर कौन है? वही वकास अली मुगल जिसका मैं शुरू में जिक्र कर चुका हूँ, जाफ़र ख्वाजा का फ्रंटमैन। एक और जाली बिल ऑफ एंट्री दिखा देता हूँ। इस बिल ऑफ एंट्री के मुताबिक भी लेमी ने चाइना से पंखे मंगवाए हैं, लेकिन कस्टम के रिकॉर्ड के मुताबिक ये बिल ऑफ एंट्री जाली है और असल बिल ऑफ एंट्री पर MAL पाकिस्तान लिमिटेड ने मलेशिया से तेल इंपोर्ट किया था और AML पाकिस्तान को तो शायद पता भी नहीं हो कि उनके बिल ऑफ एंट्री को इस्तेमाल करते हुए बिलावल करप्शन की गई है। इस मामले में एक और बात भी बता दूं, कस्टम के इन जाली डॉक्यूमेंट्स में पंखों की इंपोर्ट पर जो कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी समेत टैक्सेस लगे हैं ना, वो भी वो नहीं है जो इब्तिदा में वर्ल्ड बैंक को बताए गए थे। पंखे की कीमत और इन टैक्सेस को कैलकुलेट किया जाए तो डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक एक पंखा 12,000 रुपये से भी ज़ायद का दिखाया गया है, यानी 2 अरब 40 करोड़ रुपए के 2 लाख पंखे जो इंपोर्ट किए ही नहीं गए और उन पर जाली टैक्सेस और ड्यूटीज़ की रकम भी वर्ल्ड बैंक से क्लेम करके हड़प कर ली गई। अगर पंखे इंपोर्ट ही नहीं किए गए तो सिंध हुकूमत ने आवाम में तकसीम क्या किया है? गौर से देख लीजिए इस तस्वीर को। इस पंखे पर नीचे लेमी की पैकिंग की गई है, लेकिन ये पंखा है तैमूर का। तो जनाब हकीकत ये है कि पंखे इंपोर्ट करने के बजाय लोकली यानी यहाँ से ही तैमूर नामी कंपनी से ख़रीद लिए गए, लेकिन कागजात में दिखाया गया कि ये इंपोर्ट किए गए हैं, यानी वर्ल्ड बैंक को एक और चूना। लोकली इस एक पंखे की कीमत 7,000 से ज़्यादा नहीं है। अब छोड़ें यार, जब सब कुछ ही जाली है तो अब 12,000 और 7,000 के दरमियान 5,000 के फ़र्क को 2 लाख से ज़र्ब करने से इस ज़र्ब करप्शन पर कोई ज़र्ब नहीं पड़ने वाली। फिर भी बता देता हूँ, ये 1 अरब रुपए बनते हैं। अब इस सोलर किट के आखिरी आइटम पर आते हैं, माउंटिंग फ्रेम पर। माउंटिंग फ्रेम में भी वही गेम है जो पंखों में किया गया। वर्ल्ड बैंक को दिखाया गया कि ये माउंटिंग फ्रेम भी चाइना से इंपोर्ट किया जाएगा और इसकी कीमत वर्ल्ड बैंक को शो की गई $13, जिस पर टैक्सेस और ड्यूटी मिलाकर ये वर्ल्ड बैंक को $22 का पड़ गया। लेकिन जनाब इसकी भी सिर्फ इंपोर्ट के जाली कागजात तैयार हुए। ख़रीदा ये भी लोकल मार्केट से ही गया है, कराची की कंपनी प्रोग्रेसिव इंजीनियर्स से, और वो भी सिर्फ 1,050 रुपये में। जबकि वर्ल्ड बैंक ने इस माउंटिंग फ्रेम की ख़रीदारी के लिए सिंध हुकूमत को 6,000 रुपये से ज़ायद का कर्जा दिया है, यानी 1,000 की चीज़ कागजात में 6,000 की दिखाकर 5,000 रुपये जेब में, और 2 लाख यूनिट्स पर ये 5,000 रुपये बनते हैं 1 अरब रुपये। इस करप्शन में इतने ज़र्ब हैं कि इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड करते हुए दिमाग पर भी ज़रबें पड़ती रहीं। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हो गई है। बिलावल भुट्टो के इंतखाबी नारे से शुरू होने वाले इस करप्शन का दूसरा फेज़ भी शुरू हो चुका है और उसमें उससे ज़्यादा करप्शन की कहानियाँ सामने आ रही हैं। यहाँ तक कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने वज़ीर आला सिंध को इस मामले पर ख़त भी लिख दिया है। काश बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपने इंतखाबी नारे से शुरू होने वाले इस करप्शन का कोई नोटिस ले लें, क्योंकि अगर उन्होंने अभी भी नोटिस नहीं लिया तो जिस तरह शाराए भुट्टो में भुट्टो का नाम सैलाब में बह गया, कहीं कल उनका नाम करप्शन के सैलाब में ना बह जाए। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए FIR, जब तक जुर्म बाकी है।